پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب جان کیٹس، عظیم برطانوی شاعر کا سرورق۔ اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی 5ویں اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 41 سے لے کر صفحہ نمبر 48 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی 5ویں اور آخری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ جان کیٹس اور ایزابیلا جونز کی یہ دوستی بھی جان کیٹس کے انہی مصور دوست بینجامن رابرٹ ہیڈن نے ہی کروائی تھی۔ 22 اکتوبر سن 1818 کو جان کیٹس ایزابیلا جونز کی دعوت پر وسطی لندن میں واقع فٹزروویا کے علاقے میں ان کی رہائش گاہ پر بھی گئے تھے، جہاں پر ایزابیلا جونز نے نہایت والہانہ اور گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا تھا، اور وہاں پر ان دونوں کے درمیان ایک طویل رومانوی ملاقات بھی ہوئی تھی، اور وہ بہت دیر تک ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے وہاں پر بیٹھے رہے تھے۔ ایزابیلا جونز نے اپنے گھر میں جان کیٹس کی آمد پر انہیں اپنے ایولین ہارپ پر اپنی تیار کردہ ایک مسحور کن موسیقی کی دھن سنا کر انہیں بے حد محظوظ کیا تھا، اور وہ ان کے گھر میں موجود مصوری کے فن پاروں، نصف دھڑ کے مجسموں، کتابوں، پرندوں اور نپولین بوناپارٹ کے کانسی کے مجسمے کو دیکھ کر بھی بے حد متاثر ہوئے تھے۔ ایزابیلا جونز نے جان کیٹس کو اپنے گھر سے روانگی سے قبل اپنے شکار کردہ چھوٹے جانوروں کے کچھ تحائف بھی دیے تھے، جنہیں جان کیٹس نے 22 اکتوبر سن 1818 سے لے کر 19 فروری سن 1819 کے درمیان اپنے عزیز دوستوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایزابیلا جونز نے جان کیٹس کو بہت ہی دکھی دل کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کیا تھا۔ جان کیٹس اور ایزابیلا جونز کی دوستی اور محبت کا یہ سلسلہ سن 1817 سے لے کر سن 1820 کے درمیان جاری رہا تھا، اور ان دونوں کی اس ملاقات کا ذکر ہمیں ایک مشہور اسکاٹش صحافی جان اسکاٹ کے رسالے دی لندن میگزین کے سن 1820 کے شائع ہونے والے شمارے میں بھی ملتا ہے۔ ایک امریکی مصنف ولیم والٹر جیکسن بیٹ اور ایک برطانوی مصنف جن کا نام رابرٹ ولیم وکٹر گٹنگز ہے کے مطابق سن 1817 میں جان کیٹس کی تحریر کردہ ان 9 نظموں میں تڑپ، اشتیاق اور بحر و فراق کی جس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، انہیں پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان نظموں میں ایزابیلا جونز کو بہت محبت اور شدت سے یاد کیا گیا ہے۔ جان کیٹس کی ان نظموں کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، انہرڈ یعنی انسنا۔ نمبر 2، انفیلٹ یعنی غیر محسوس شدہ۔ نمبر 3، انسین یعنی اندیکھا۔ نمبر 4، ہیتھر ہیتھر لو یعنی ادھر آؤ ادھر آؤ اے میرے محبوب۔ نمبر 5، لو یعنی محبت۔ نمبر 6، دا ایونٹ آف سینٹ مارک یعنی سینٹ مارک کی ضیافت کی رات۔ نمبر 7، دا ایو آف سینٹ ایگنس یعنی سینٹ ایگنس کی شب۔ نمبر 8، ہوش ہوش او سویٹ ایزابیل یعنی خاموش خاموش اے پیاری ایزابیل۔ نمبر 9، برائٹ اسٹار یعنی چمکتا ستارہ۔ 23 فروری سن 1821 کی رات 11 بجے جب اٹلی کے شہر روم میں
जॉन कीट्स का 25 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ तो उनकी वफ़ात की इत्तला सबसे पहले इज़ाबेला जोन्स को ही दी गई थी। जॉन कीट्स और फ्रांसिस फैनी ब्राउन की दोस्ती और उनका रोमान। जॉन कीट्स के खतूत और उनकी नज़मों के मुसव्विदात से मालूम हुआ है कि फ्रांसिस फैनी ब्राउन और जॉन कीट्स की पहली मुलाकात सितंबर सन 1818 में वेंटवर्थ प्लेस में हुई थी, जब उनकी उम्र महज 18 बरस की थी। नवंबर सन 1818 में जॉन कीट्स और फ्रांसिस फैनी ब्राउन के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगीं, जब वो चार्ल्स वेंटवर्थ डिल्के के ख़ानदान से मिलने के लिए वेंटवर्थ प्लेस में मुस्तकिल आने लगी थीं। फ्रांसिस फैनी ब्राउन 9 अगस्त सन 1800 को वेस्ट एंड नामी बस्ती में पैदा हुई थी, जो कि मौजूदा दौर में अब वेस्ट हेम्पस्टेड के इलाके में वाक़ई है। फ्रांसिस फैनी ब्राउन के दादा भी जॉन कीट्स के नाना जॉन जेनिंग्स ही की तरह लंदन के एक इलाके कासल स्ट्रीट में घोड़ों का एक अस्तबल चलाया करते थे, जिसका नाम कोच एंड हॉर्सेस पब था। फ्रांसिस फैनी ब्राउन के दादा, जिनका नाम सैमुअल ब्राउन था, उनका इंतकाल भी तपेदिक की मूजी बीमारी में मुब्तला होकर हुआ था। फ्रांसिस फैनी ब्राउन के वालिदैन के नाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1 सैमुअल वर्नन ब्राउन वालिद। नंबर 2 फ्रांसिस रिकेट्स वालिदा। फ्रांसिस फैनी ब्राउन लिबास की सिलाई और मुख्तलिफ ज़बानों में महारत रखने के साथ साथ अदाकारी करने का भी फितरी रुझान रखती थीं। 3 अप्रैल सन 1819 को फ्रांसिस फैनी ब्राउन और उनकी बेवा वालिदा फ्रांसिस रिकेट्स चार्ल्स वेंटवर्थ डिल्के की रिहाइश का वेंटवर्थ प्लेस के एक दूसरे हिस्से में रिहाइश के लिए मुंतकिल हो गई थीं, जिसके बाद जॉन कीट्स और फ्रांसिस फैनी ब्राउन का रोज़ाना मिलना जुलना मुमकिन हो गया था। जॉन कीट्स ने फ्रांसिस फैनी ब्राउन को मशहूर इतालवी मुसन्निफ दांते एलिगीरी की मशहूर ज़माना किताब इन्फर्नो पढ़ने के लिए दी थी, जो कि इतालवी ज़बान में तहरीर करदा थी, जिसे फ्रांसिस फैनी ब्राउन और जॉन कीट्स मिलकर पढ़ा करते थे, क्योंकि फ्रांसिस फैनी ब्राउन को इतालवी ज़बान पर मुकम्मल अबूर और महारत हासिल थी। इसके साथ साथ जॉन कीट्स ने अपनी एक नज़म, जिसका उन्वान ब्राइट स्टार यानी चमकता सितारा था, जो उन्होंने खुसूसी तौर पर इज़ाबेला जोन्स के लिए ही तहरीर की थी, इसका भी एक नज़रसानी शुदा मुसव्विदा खुसूसी तौर पर फ्रांसिस फैनी ब्राउन के लिए दोबारा तैयार किया था, और वो ब्राइट स्टार नज़्म जॉन कीट्स ने फ्रांसिस फैनी ब्राउन को बतौर अपनी इजहार मोहब्बत तोहफ़तन पेश कर दी थी। जॉन कीट्स अपनी इस नज़्म ब्राइट स्टार यानी चमकता सितारा पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद महीनों तक काम करते रहे थे, और फिर बिला आखिर ये नज़म ही फ्रांसिस फैनी ब्राउन के साथ जॉन कीट्स के बाहमी ताल्लुक़ की आखिरी पहचान बन गई थी। ऐसा मालूम होता है कि अब जॉन कीट्स की तमाम ख्वाहिशात का मरकज़ सिर्फ फ्रांसिस फैनी ब्राउन ही बन गई थी, और जॉन कीट्स फ्रांसिस फैनी ब्राउन से अपनी मोहब्बत के इस मकाम पर पहुंचने के बाद उनकी शायरी में अब इज़ाबेला जोन्स का कोई भी दस्तावेज़ी तज़किरा नहीं मिलता। इस दौरान जॉन कीट्स को इल्म हुआ कि उन्हें नवंबर सन 1818 में अपने छोटे भाई थॉमस कीट्स की तीमारदारी के दौरान लगने वाले तपेदिक के जरासीमों का असर अब उनके फेफड़ों में पूरी तरह से फैल चुका है, तो उन्होंने जून सन 1819 में फ़ैसला कर लिया कि अब वो हर सूरत में फ्रांसिस फैनी ब्राउन को अपने साथ शादी करने के लिए रज़ामंद करेंगे।
अब जॉन कीट्स को अंदाज़ा हो चुका था कि उनके पास ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही कम वक्त बाकी रह गया है। इसलिए उन्होंने 13 अक्टूबर सन 1819 को फ्रांसिस फैनी ब्राउन को एक ख़त तहरीर किया था, जिसमें उन्होंने उनसे अपनी मोहब्बत का बरमिला एतराफ़ कर दिया था। उनकी ये तहरीर एक सच्ची मोहब्बत की आईनादार और कुछ यूँ थी: मेरी मोहब्बत ने मुझे खुदगर्ज़ बना दिया है, मैं तुम्हारे बग़ैर नहीं जी सकता। तुम्हें दोबारा देखने के सिवा मुझे किसी और चीज़ का होश नहीं है। मेरी ज़िंदगी गोया वहीं थम गई है और इससे आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तुमने मुझे अपने आप में समो लिया है। इस लम्हे में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरा वजूद पिघल रहा हो। अगर मुझे तुम्हें जल्द देखने की उम्मीद ना हो तो मैं शदीद कर्ब और बदहाली का शिकार हो जाऊं। मुझे हैरत होती है कि लोग मज़हब की खातिर कैसे शहादत पा सकते हैं। इस ख्याल से ही मुझ पर लर्ज़ा तारी हो जाता है, मगर अब मुझ पर वो लर्ज़ा तारी नहीं होता। मैं अपने मज़हब की खातिर शहादत पा सकता हूँ। मोहब्बत ही मेरा मज़हब है। मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने नवंबर सन 1819 के मौसम ख़ज़ां ही में फ्रांसिस फैनी ब्राउन को मंगनी की अंगूठी भी पहना दी थी। 3 फरवरी सन 1820 को जॉन कीट्स को तपेदिक के मर्ज़ में लाहक होने की तस्दीक उस वक्त हुई जब उन्हें खांसी के साथ खून की बलगम आनी शुरू हो गई थी। डॉक्टरों ने उन्हें गर्म और मरतूब आबो हवा वाले इलाके इटली के शहर रोम में जाने का मशवरा दिया था, जहाँ की आबो हवा तपेदिक की बीमारी के इलाज के लिए मौजू तरीन समझी जाती थी। जॉन कीट्स का इटली के शहर रोम के लिए बहरी सफ़र। इसलिए 17 सितंबर सन 1820 को जॉन कीट्स डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक लंदन की ब्लिंक्सगेट डॉक टावर वहाफ बंदरगाह से एक मुसाफिर बरदार बहरी जहाज़ जिसका नाम मारिया क्राउथर था से अपने एक अजीज़ मुसव्विर दोस्त जोसेफ सेवन के हमरा लंदन से इटली के शहर रोम के लिए रवाना हो गए थे। मारिया क्राउथर बहरी जहाज़ 21 अक्टूबर सन 1820 को इटली की बंदरगाह नेपल्स पर पहुंचा, जो हुस्न इत्तफाक से जॉन कीट्स की 25वीं सालगिरह का दिन भी था। नेपल्स की बंदरगाह पर मारिया क्राउथर बहरी जहाज़ को एक 10 रोज़ा हेल्थ क्वारंटाइन के लिए रोक लिया गया था, क्योंकि उस वक्त इटली के तमाम शहरों में कॉलरा यानी हैज़े की बीमारी एक वबा की सूरत में फैल रही थी। 1 नवंबर सन 1820 को मारिया क्राउथर बहरी जहाज़ को रोम जाने की इजाज़त मिल गई और वो नेपल्स की बंदरगाह से रोम के बहरी सफ़र के लिए रवाना हो गया। 15 नवंबर सन 1820 को मारिया क्राउथर बहरी जहाज़ रोम की बंदरगाह पर पहुंच गया, जहां से जॉन कीट्स और उनके मुसव्विर दोस्त जोसेफ सेवन रोम के लिए अपने अपार्टमेंट, जो कि रोम के 26 पियाज़ा डी स्पाग्ना में विला स्पेनिश स्टेप्स के मकाम पर वाक़ था, में रिहाइश के लिए मुंतकिल हो गए थे, जहां पर जॉन कीट्स का इलाज एक स्कॉटिश डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर जेम्स क्लार्क था की निगरानी में शुरू कर दिया गया था। लेकिन जॉन कीट्स की तपेदिक की ये बीमारी बढ़कर इस कदर शदीद हो चुकी थी कि अब उन्हें इटली की इस शानदार आबो हवा में भी उनका इलाज मुमकिन नहीं रहा था और बिलाखिर इस छोटे से अपार्टमेंट में 5 महीने तक वो अपनी मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ने के बाद बिलाखिर 23 फरवरी सन 1821 की रात को 11 बजे इंतकाल कर गए थे। जॉन कीट्स की वफ़ात की इत्तला जोसेफ सेवन ने जब अलहदा इज़ाबेला जोन्स
اور فرانسس فینی براؤن کو بھیجی تو ان دونوں کو غشی کے دورے پڑنے لگ گئے تھے۔ جان کیٹس کی وفات کے بعد انہیں روم کے شہر کے ایک پروٹسٹنٹ سیمیٹری قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ روم شہر کے جس اپارٹمنٹ میں جان کیٹس اور ان کے دوست جوزف سیون نے قیام کیا تھا، اس گھر کو اب کیٹس شیلے میوزیم قرار دے دیا گیا ہے اور محفوظ کر لیا گیا ہے۔ 3 اگست سن 1879 کو جان کیٹس کے مصور دوست جوزف سیون کا بھی روم شہر ہی میں 85 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ جوزف سیون جان کیٹس سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے وہ ان کے انتقال کے بعد روم شہر ہی میں ٹھہر گئے تھے اور انگلینڈ واپس نہیں گئے تھے، اور انہوں نے اپنی بقیہ تمام زندگی روم شہر میں رہ کر ہی گزار دی تھی۔ جوزف سیون کے انتقال کے بعد ان کی تدفین بھی جان کیٹس کے پہلو میں پروٹسٹنٹ سیمیٹری قبرستان ہی میں کی گئی تھی۔ ختم شد۔